and I welcome you all to Echo with JP. This is the third class of our second chapter, which is dual effects of transaction. In the first two classes of this chapter, we have learned about cash and credit transaction, how to classify whether the transaction is on cash or on credit. We learned about business transaction. We classified whether the transaction is economic transaction or non-economic transaction. We learned about internal and external transaction. In this class, we are going to learn about dual effect of transaction. Now, the main part of what the chapter is named, we are going to start with that. Under double entry system, as per its name itself, two entries are done for each transaction. Normally, business transaction is also between two parties. The transaction between these two parties may be of following matter. First, any person takes benefit of business or gives benefit to business. Personal accounts. Increase or decrease in goods, assets, real accounts. Either expenses incurred or revenue is realized in the business, nominal accounts. These three types of accounts, which are personal accounts, real accounts, and nominal accounts, I am going to teach you in the next video of this chapter. I have explained it. I'm going to explain you in very simple way and very detailed manner about these two accounts. And there are some rules while learning this accounts. Okay. So about these three types of accounts, detailed explanation is given in the point number 6. Point number 6, I'm going to discuss in the next video. Rules of incorporating effects in these accounts are foundation of accounting. True and appropriate understanding of these rules is true and appropriate understandings of accounting. As and when business transaction takes place, two effects emerge from it. This line is very important while we learn dual effects of transaction. It's written as and when business transaction takes place, two effects emerge from it. This effect should be studied keeping in mind the above mentioned explanation. Whenever a transaction takes place, there are two effects which emerge from it. What are those two effects? Whenever, like I have taught you in the last chapter, accounting and its terminology, about double entry system, right? I told you with giving a example of a real transaction that whenever a business transaction is taking place, there is a double entry. First, we write credit also, and after that, we write debit also. सो टू इफेक्ट्स इमर्ज फ्रॉम इट. जब भी ये ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उसके अकाउंट पे दो इफेक्ट्स तो होते ही है. वो दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ. देखो, which two effects would takes place for following transaction? Manoj commenced business with introduction of capital of 20,000. ये जो 11 एग्जाम्पल है, वो आप एक बार रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इनके जो आंसर्स है आप पॉज करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या मैं आपको अभी उसके आंसर बता दे रहा हूँ. आप पॉज करके पहले ये 11 के 11 पॉइंट एक बार रीड कर लीजिए, और आपके पास अगर कोई पेन या पेपर है उसके अंदर लिख लीजिए आंसर. तो जब मैं आंसर्स बताऊं तब चेक कर लेना. ओके. फर्स्ट, बिजनेस कमेंट्स विद कैपिटल ऑफ 20,000. इसके अंदर ड्यूअल इफेक्ट क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन का? फर्स्ट इफेक्ट क्या है? जब बिजनेस को बढ़ाने के लिए मनोज ने 20,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो क्या हुआ? कैश कम्स इन, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट. सही बात है, बिजनेस के अंदर कैश आया तो क्या हुआ? उसका कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा. और ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल, इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ओनर है उस कंपनी ना, उसने क्या किया कि अपनी कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो जो कैपिटल अकाउंट होगा उसके अंदर ये सेकंड इफेक्ट आया. दूसरा एग्जांपल है, बैंक अकाउंट ओपन विथ एसबीआई रुपीज 40,000. यहाँ पे क्या लिखा है? द अकाउंट इज ओपन विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000 रुपीज. इसके अंदर फर्स्ट इफेक्ट क्या है? बैंक रिसीव, बैंक रिसीवर, इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट. एसबीआई के साथ आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, आपने बैंक 40,000 रुपये उसके अंदर डिपॉजिट किए, तो बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि पैसे आए. और दूसरा, कैश गोज आउट, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट. सही बात है, मैंने 40,000 रुपये कैश में बैंक में दिए, तो मेरा जो कैश अकाउंट है उसमें से कैश कम हो गया और बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए.
थर्ड एग्जाम्पल है गुड्स वर्थ 3000 रुपीज परचेज फ्रॉम भावना बहन। इस ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका पहला इफेक्ट क्या हुआ? गुड्स वर्थ 3000 रुपए के गुड्स हमने खरीदे, गुड्स कम्स इन, तो इफेक्ट ऑन परचेस अकाउंट, हमारा जो परचेस अकाउंट है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, गुड्स आ रहा है। और भारती भारती बहन, भावना बहन, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, भावना बहन, भारती बहन गिवर, भारती बहन जो है वो हमें 3000 रुपए के गुड्स दे रहे हैं, तो क्या हुआ? भारती बहन हमें गुड्स देंगे तो हमें उनको 3000 रुपए देने हैं, तो क्या हुआ? इफेक्ट ऑन भारती बहन अकाउंट, भारती बहन के अकाउंट पे इफेक्ट होगा। सही बात है। ओके, भारती बहन ने हमें गुड्स दिए, हमने उनको पैसे दिए, तो क्या हुआ? हमारे पास गुड्स आया, हमारे परचेस अकाउंट पे इफेक्ट हुआ। और हमने उनको पैसे दिए और उन्होंने हमको गुड्स दिए, तो उनके भारती बहन के जो पर्सनल अकाउंट है उस पे इफेक्ट आया। फोर्थ, goods worth 5000 sold to people. Here what is happening? The same case of goods worth 3000 purchase. Here we are selling it to Vipul. So Vipul is receiver. Vipul is receiving the goods. So there will be a effect on Vipul's account and goods goes out. Effect on sales account. What all goods we sold to, about 5000 rupees goods were sold to Vipul. So goods is going out from our side. So there will be effect on our sales account. This is the first effect of transaction, goods worth 5000 rupees, 5000 sold to people, and this is the second effect. Fifth is goods sold worth 2000 for cash. Here, what are the two effects? Goods sold worth 2000 for cash. When goods worth 2000 are sold, let's say if I have this earphone with me, I'm selling it for 2000 rupees. So what is happening? 2000 rupees are coming. Yes, cash comes in because here it is classified for cash. So cash comes in. So there will be an effect on our cash account and goods is going out. मेरे पास ये ईयरफोन थे वो जा रहे हैं मेरे साइड से, तो क्या हुआ? मेरा जो सेल्स अकाउंट है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सही बात है, कैश आया ये पहला इफेक्ट और सेल्स अकाउंट पे इफेक्ट हुआ वो दूसरा इफेक्ट। सिक्स्थ इज फर्नीचर परचेज्ड वर्थ 1500 रुपीज। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। ओके, फर्नीचर हमारे पास आया और फर्नीचर के लिए हमने पैसे दिए, तो क्या हुआ? ये पहला इफेक्ट हो गया कि फर्नीचर कम्स इन, और दूसरा इफेक्ट हो गया कैश गोज आउट, हमारे कैश अकाउंट पे भी इफेक्ट हुआ। और ये परचेस अकाउंट गिन लो, इफेक्ट ऑन फर्नीचर अकाउंट नेग्लेक्ट करो, इफेक्ट ऑन परचेज अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आएगा, हमारे पास फर्नीचर आया, कट। नेक्स्ट, सेवंथ एग्जाम्पल क्या है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन? कमीशन पेड 200 रुपीज। When commission of 200 rupees is paid, so what will be the first effect of it? First effect will be expense incurred, effect on commission account, and cash goes out. So it is effect on cash account. It is true. Then when commission is paid, so expense account, on commission account there will be an effect because commission is paid to someone and cash from our side is going out, so there will be an effect on our cash account too. Eighth example is Vipul returned goods worth 200 rupees. Goods sold goods sold comes in effect on sales return account. हमने जो गुड्स विपुल को दिए थे 200 रुपए के, वो गुड्स वापिस हमारे पास आ जा रहे हैं, तो क्या हुआ? हमारे सेल्स रिटर्न अकाउंट पे इफेक्ट होगा। हमारा जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, जो भी हमने बेचा वो वापिस आ रहा है, उसका जो अकाउंट है उस के ऊपर इफेक्ट आएगा। और दूसरा क्या होगा? विपुल इज गिवर, इफेक्ट ऑन विपुल्स अकाउंट। सही बात है, विपुल जो हमारे पास हमने उसको गुड्स दिए थे वो हमको वापस दे रहा है, तो क्या हुआ? विपुल के भी पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट आएगा इसका। आप ये सब जो एग्जाम्पल है ना रीड करना भी है हमको,
पर उसको अगर आप फील करोगे कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, आप किसी को पैसे दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, तो रियल लाइफ में कैसा होता है, आपके कौन से अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, आप गुड्स दे ले रहे हो या दे रहे हो, अगर आप उसको फील करके रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझ के अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा। नाइन्थ पॉइंट है, देखो ये रियल लाइफ एग्जांपल ही है ना, विपुल रिटर्न, हमने किसी को गुड्स दिए वो वापिस दे रहा है, तो हमारे सेल्स रिटर्न अकाउंट पे इफेक्ट हुआ, गुड्स हमारे पास पीछे आ गया और विपुल हमको वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो विपुल के पर्सनल अकाउंट पे भी इफेक्ट हो रहा है। ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे नाइन्थ एग्जाम्पल है, वो भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ही है, गुड्स रिटर्न वर्थ 150 रुपीज टू भारती बैंक। अभी क्या है, कोई भारती बहन गुड्स सेलर है, वो गुड्स बेचती है, उन्होंने मुझे कुछ दिया, लेट्स से उन्होंने मुझे ये बॉटल दी, ओके, 150 रुपए की ये बॉटल है, तो मैंने उनको रिटर्न कर दी, तो क्या हुआ, उसका पहला इफेक्ट क्या होगा कि भारती बहन रिसीवर है, हाँ उनके गुड्स वो वापस लेंगे, तो इस बार विपुल गिवर था, तो विपुल आप खुद को मान लो, इस बार आप दे रहे हो तो विपुल आप हो गए गिवर हो, तो भारती बहन रिसीवर है इस बार। इफेक्ट क्या हुआ, भारती बहन के अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, सही बात है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि गुड्स गोज आउट, इफेक्ट ऑन परचेस रिटर्न अकाउंट, ये मेरे पास ये गुड्स था, वो जा रहा है, तो क्या हो गया, इफेक्ट ऑन परचेस रिटर्न, क्योंकि क्या हुआ, हमने ये गुड्स को परचेस किया था और हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे परचेस रिटर्न अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का। टेंथ एग्जाम्पल क्या है, चेक ऑफ 2850 इश्यूड टू भारती बैंक। हाँ, 2850 रुपए का चेक है, हम इश्यू कर रहे हैं भारती बैंक के नाम पे, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट इफेक्ट ऑन इट, the first effect will be on Bharti Ben's account, yes, because we are issuing the check on the name of Bharti Ben. And second will be the effect on bank account, because check, when I'll be giving check to Bharti Ben, she will go and give it to the bank. So bank will give Bharti Ben 2850 rupees. So here bank is the giver. So there will be an effect on the bank account. 11th is Vipul gave check for 4,800 rupees. नाउ मेरे पास अगर कोई चेक है, विपुल मेरा नाम है अगर समझ लो, मेरे पास 4,800 रुपए का चेक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको लेके जाऊंगा बैंक में, तो क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, अब बताओ, मेरे इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट आएगा, सही बात है, देयर विल बी एन इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट, एंड विपुल इज गिवर, इफेक्ट ऑन विपुल्स अकाउंट, विपुल गिव चेक फॉर 4,800 रुपीज, आराम से समझो, बैंक रिसीवर है, इस बार बैंक चेक रिसीव कर रही है और विपुल इज ए गिवर, विपुल दे रहा है, तो क्या हो गया, इफेक्ट क्या होगा इसका, विपुल के पर्सनल अकाउंट पे भी पड़ेगा। So that is all for today's video, my friend. We'll meet in the next video. Now only two topics are left in this chapter. This video was much short because I wanted to explain in detail only about the dual effects of transaction. If you read this example again, you will know that this topic is very easy, but it is very important to learn when we are learning about transactions and accounting. In the next part, we are going to learn about types of account. If you remember when the video started, I told you about personal account, real accounts, and nominal account. So in the next video, we are going to learn about that. That video might be much longer, but it will be a very detailed video and a much easier way. And the last topic will be about the rules of debit and credit. So only two videos are left. We'll meet in the next video, and thank you for spending your valuable time watching my video. Thank you.